اب کچھ کراچی کی بات کرتے ہیں. بالکل ون ٹاپک آفٹر دی ادر. ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا جیم پیک شو ہو جو آپ لوگ بھی بہت پسند کر رہے ہیں. تو جی بات کرتے ہیں کراچی روڈ ریپیرنگ کی. شہر قائد میں سڑکوں کی مرمت کا کام جاری ہے. اس پر ایک رپورٹ دیکھتے ہیں, پھر بات کریں گے ڈپٹی میئر کراچی سے. کراچی والوں کی سن لی گئی. بدحال اور خستہ حال سڑکوں کی مرمت شروع کر دی گئی. پہلے فیز میں شہر کی 33 سڑکیں تعمیر کی جا رہی ہیں, جبکہ شہر کی مختلف سڑکوں پر اسٹریٹ لائٹس کے نظام کو بھی جدید بنایا جا رہا ہے. میئر کراچی کے مطابق تمام کمپنیز کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ سڑکوں کی تعمیر میں کسی بھی قسم کی کوتاہی یا غیر معیاری مٹیریل استعمال نہیں ہونا چاہیے. ناقص مٹیریل استعمال کرنے والی کمپنی کو فوری طور پر بلیک لسٹ کر دیا جائے گا. مرکزی سڑکوں کے علاوہ ناظم آباد, طارق روڈ اور عمر شریف انڈر پاس, جبکہ ناتا خان, ڈرگ روڈ, نیپا, سوراب گوڈ, بلوچ کالونی اور کارساز کے پلوں کی مرمت بھی کی جا رہی ہے. مرتضی وہاب کے مطابق شہر کے انفراسٹرکچر کو جلد از جلد بہتر بنانا ترجیحات میں شامل ہے. سڑکوں, پلوں, انڈر پاسز اور چورنگیوں کو بہتر بنانے سے ٹریفک کی روانی میں حائل رکاوٹیں دور ہوں گی. جی ہماری دعا یہی ہے کہ یہ روڈ برقرار رہے. نہیں آ رہی تھی کہ کیا ختم ہو گیا باقی. جی آپ بتائیے. ہمارے ساتھ اس وقت سلمان عبداللہ مراد صاحب ہیں, ڈپٹی میئر کراچی ہیں. تو یہ سڑکوں کی مرمت کا کام جو شروع ہو گیا ہے, اب یہ چلتا رہا ہے. جہاں جہاں سڑکیں خراب ہیں یقینی طور پر انہوں نے سرویز کیے ہوں گے, تو ہم امید یہ کرتے ہیں کہ وہ سڑکیں جلدی مرمت ہو. سلمان صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا رائز اینڈ شائن پر. پہلا سوال یہ کہ شہر میں سڑکوں کی مرمت کا کام تو شروع کر دیا گیا, لیکن دوسری طرف واٹر بورڈ, سوئی گیس اور پی جی سی ایل والے نئی تعمیر شدہ سڑکوں کو دوبارہ کھود رہے ہیں. تو یہ تو ایک معاملہ ہے نا, اور اوور دی ایئرز ہم یہ معاملہ دیکھتے ہیں کہ ایک سڑک بنتی ہے اور اس کے بعد دوبارہ اسے کھود دیا جاتا ہے. سلسلے میں جیسے آپ نے سوال کیا کہ برسات کے بعد جو روڈوں کی دوبارہ کارپیٹنگ کا عمل شروع کیا جا چکا ہے, اس کے بعد مختلف ایشوز آئے ہیں مختلف ٹاؤنز کی جانب سے, جو ان کو روڈ کٹنگ کی پرمیشن دی جاتی ہے. جو ابھی حال ہی میں جو روڈ بنائے ہیں تو ان کی پرمیشن ان کو ٹاؤن کی طرف سے مل جاتی ہے, تو ان کے بعد سے یہ روڈوں کو دوبارہ اکاڑ دیتے ہیں. تو اس سلسلے میں میئر صاحب نے چیف سیکریٹری اور چیف منسٹر صاحب کو یہ کہا ہے کہ اس کی ون ونڈو آپریشن ہو, تاکہ کوئی ایک ادارہ ہو جو روڈ کٹنگ کی پرمیشن دے, تاکہ جو ہم انفراسٹرکچر پہ خرچ کرتے ہیں تو نقصان نہ ہو اس پر. تو اس سلسلے میں سندھ گورنمنٹ اس پر امپلیمنٹ کرنے جا رہی ہے, تاکہ اس طرح کے اقدام سے سندھ گورنمنٹ اور ان کے بھی پیسوں کا نقصان ہوتا ہے اور شہریوں کو بھی تکلیف کا باعث بنتے ہیں. تو اس سلسلے میں سندھ حکومت کی جانب سے امپلیمنٹ کیا جائے گا تاکہ ون ونڈو. جی سر, یہ بھی بتائیے گا کہ کتنا کام کر چکے ہیں اور کتنا کام باقی ہے. پورے 7 اضلاع میں کام ہو رہا ہے, کام کافی حد تک کمپلیٹ ہو چکا ہے. کچھ ایریاز, کچھ سڑکیں رہتی ہیں, وہ بھی انشاءاللہ اسی ویک فائنل ہو جائیں گی جو ان کے کارپیٹنگ کا کام ہے. اس کے علاوہ ہم نے پورے کراچی میں 7 اضلاع کے اندر مختلف اسکیمیں شروع کی ہیں اور ابھی کرنے جا رہے ہیں. جیسے کہ ہمارے کونسل کے ممبران ہیں, اسی چیئرمین, ان کی بھی ADP اسکیمیں انشاءاللہ اس منتھ ان کے بھی اسکیم میں شروع ہو جائیں گے, انہوں نے اپنے لوگوں سے وعدے وفا کر آئے ہیں. اپنے علاقوں میں کہیں پیور بلاک کا کام ہوگا, اسٹریٹ لائٹس کے کام ہوں گے, مختلف اسکیمیں ہیں جو ابھی انشاءاللہ اس منتھ میں ان کو بھی شروع کیا جائے گا, تاکہ اس شہر میں جو پہلی دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ KMC میں آئی ہے تو بلا تفریق بلا لسان عوام کی خدمت پر یقین رکھتی ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے پورے کراچی کے 7 اضلاع میں, یہ نہیں کہ جہاں ہمارا ووٹ بینک ہے, جہاں ہماری اکثریت ہے وہاں نہیں, بلکہ اس سے ہٹ کر جہاں ہمارا کوئی کونسلر بھی نہیں ہے تو اس ایریا میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو ویژن ہے, تو اس کو لیتے ہوئے ہم تمام پورے کراچی کے ہر کونے پہ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے کام کر کر. یہ بھی کہے گا کہ یہ ہم نے دیکھا کہ بھائی مین سڑکیں ان پر کام تو شروع ہو چکا ہے, لیکن گلیوں اور جو پتلی سڑکیں ہیں وہاں کی صورتحال بڑی خراب ہے, تو یقینی طور پر اویئر ہوں گے آپ, اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ مین جو KMC کی ڈومین میں 106
बड़ी शारें जो KMC का डोमेन बनता है वहाँ पे काम हो रहे हैं। जो इंटरनल गलियाँ हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि टाउन्स की जिम्मेदारी बनती है, और टाउन और मुख्तलिफ और दूसरे सिविक एजेंसी हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, मगर यहाँ सारा मलबा KMC के ऊपर डाला जाता है, इस तरह है ही नहीं। तो इस सिलसिले में मैं ये भी कहता चलूँ कि हमारे UC चेयरमैन जो हमारे हाउस के मेंबर हैं, हमने उनको भी स्कीमें दी हैं, उन्होंने भी अपने इंटरनल गलियों की स्कीमें दी हैं, तो उनको भी KMC की जानिब से इसी मंथ वहाँ के काम शुरू हो जाएंगे। जैसे पेवर ब्लॉक हो गया, इंटरनल गलियाँ जो चेयरमैनों ने जो अपनी प्रायोरिटी बेसिस पे स्कीमें दी हैं, तो उनको हमने ADP स्कीम में शामिल कर इसी मंथ इंशाल्लाह उनके टेंडरिंग प्रोसीजर जारी है, वो कंप्लीट होके फिर उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। सलमान साहब, ये भी बताइएगा कि शहर में जो सीवरेज सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, और कई बार हम ये देखते हैं कि सीवरेज का जो भी पानी है वो सड़कों पे आ जाता है और उसको मज़ीद ख़राब कर दिया जाता है। तो क्या कहेंगे, उसको कंट्रोल कैसे किया जाए? उस सिलसिले में वाटर बोर्ड की इंतज़ामिया से मेयर साहब ने हमारी मीटिंगें हुई हैं, तो इस सिलसिले में काफ़ी बेहतरी आई है। जहाँ सेवरेज का इशू है तो उससे पहले सेवरेज के इशू को हल करके फिर उसके बाद कारपेट का काम शुरू की जाती है। तो पहले इस तरह नहीं था कि सेवरेज खड़ा रहे और कारपेट हो, इस तरह मुमकिन नहीं। पहले जो सेवरेज के इशू हैं उनको क्लियर करके फिर उसके बाद कारपेटिंग को फाइनल किया जाता है। ये तो मरम्मत के बारे में तो आप बता रहे हैं, शहर में पानी की किल्लत भी एक संगीन मसला बन गया है, तो क्या KMC इस ज़िम्मे में कुछ कोशिशें करने जा रही है? पानी के हवाले से अभी आपने देखा कि अब केनाल जो पुराना बना हुआ है उसके साथ एक नई केनाल का काम शुरू हो चुका है, तकरीबन नेक्स्ट ईयर फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। तो उससे 3 डिस्ट्रिक्टों में पानी का इशू हल हो जाएगा, और उस जो पुरानी केनाल है उसको भी दोबारा रेनोवेट किया जा रहा है। तो इस सिलसिले में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो इलेक्शन मंशूर में पानी का जिक्र किया था, तो उस पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और एक और दाबीजी पाइपलाइन जो 48 साल पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कराची के लिए पानी की लाइन बिछाई थी, अब उसको भी 48 साल बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट उस लाइन को दोबारा चेंज कर रही है, और वो फरवरी तक उसको भी कंप्लीट किया जाएगा। तो उससे भी जो पुराना लाइन है उससे पानी डैमेज होता था, पानी की रसाई कम होती थी। इसके नए पाइपलाइन आने से कराची की पानी की शॉर्टेज को फिल करने में बहुत सी कामयाबी होगी। और इसके अलावा एक K4 का प्रोजेक्ट है जो अनकम्प्लीट है, उसके लिए वफाक की फंडिंग की ज़रूरत है। इस सिलसिले में वज़ीर आला साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब से ये कहा है कि इस प्रोजेक्ट की जो फंडिंग है वो फुल फोर की जाए, ताकि कराची शहर का पानी का मसला हल किया जा सके। सलमान साहब, ये भी बताइए, ग्लोबल वार्मिंग पे तो हम हमेशा यही बात करते हैं कि दरख्त उगाने चाहिए, चाहे आप घर में हो, अपार्टमेंट में हो, अपने करीबी पार्क्स में जाके भी दरख्त उगाएं। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कारसाज, गुलिस्तान जौहर और भी कई इलाकों में दरख्त की कटाइयाँ हो रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, और ये भी सरवत के ग्रीन बेल्ट्स का जो तस्वुर है वो खत्म हो रहा है, सीमेंटेड हर चीज को बनाया जा रहा है, ग्रीन बेल्ट्स को भी कंक्रीट जंगल की तरफ से। तो ये क्यों कटाइयाँ हो रही हैं, और इसके मुताबिक आप क्या कहेंगे? देखिए, इस सिलसिले में जैसे ही मेयर साहब हमारे नॉलेज में आया, एक वाक़या पेश आया, तो हमने उन अफसरान को मुअत्तल कर दिया, सस्पेंड किया और उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है। तो ये दरख्त काटने के अमल के खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ा एक्शन लिया। इससे ये कि वैसे भी हम क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने जा रहे, तो इस दरख्त काटने से हमारे शहर की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। तो इस सिलसिले में हमने फिल फॉर एक्शन लेकर उन अफसरान के खिलाफ सस्पेंड भी किया, इंक्वायरी भी शुरू की। जी, अच्छा, इसे कहिए कि मुस्तकबिल में KMC का कौन सा ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है जो आवाम के लिए खुशखबरी जिसको कहा जा सकता है? देखिए, मेगा प्रोजेक्ट KMC की जानिब से चल रहे हैं। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनने जा रहे हैं, पार्क बनने जा रहे हैं सेंट्रल में, करीब उनकी ओपनिंग की जाएगी। बहुत से ऐसे मेगा प्रोजेक्ट हैं जो KMC के तहत काम होने जा रहा है। तो पानी के ऊपर काम किया जा रहा है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर काम किया जा रहा है। पार्क्स जो आपने देखा, सफारी पार्क को किस तरह पहले किस कंडीशन में था, अब उसकी कंडीशन किस तरह बेहतर हुए, वहाँ जंप लगाए, स्लिपिंग लगाई है, हॉर्स ट्रेडिंग है। तो ये
सब चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और गवर्नमेंट और KMC की तरफ से की जा रही है। जो माजी में उस सफारी पार्क के अंदर आपको कुछ और चीज़ें मिलती थी, मगर अब आप जाकर वहाँ विज़िट करें, कराची शहरियों के लिए ज़ू को देख लें आप, काफ़ी इम्प्लीमेंट की गई है और मज़ीद करने जा रहे हैं। सलमान साहब ये भी बताइएगा कि शहर में बढ़ते ट्रैफिक हादसात की वजूहात क्या शहर की नाकिस सड़कें हैं? आपके ख्याल में दूसरा सड़कों पर ट्रॉलर्स बिल्कुल, टैंकर, बहुत yes, बड़े-बड़े टैंकर्स। अलग अलग टाइमिंग्स पे चल रहे होते हैं, जबकि उनका टाइम शाम से रात तक का होता है, और वो भी काफ़ी वजूहात बनते हैं हादसात की। क्या कहेंगे आप? जी, इस जो आपने बात की ट्रालों के लिए, तो हमने तो पहले ही कहा था कि लियारी एक्सप्रेस वे को खोल दिया जाए हैवी ट्रैफिक के लिए, ताकि शहर का बोझ कम हो बड़ी ट्रैफिक से और शहरियों को परेशानी न हो। उसके लिए सबसे पहले शहर के जो पहले दावेदार थे उन्होंने ये एतराज़ किया कि ये नहीं होना चाहिए, मगर मेयर साहब ने प्राइम मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट की, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि इससे इस कराची हैवी ट्रैफिक की टर्न करने वहाँ लियारी एक्सप्रेस वे से IV की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे तो कराची शहर की ट्रैफिक का काफ़ी मसला हल हो जाएगा। तो इस सिलसिले में हमने तो कोशिशें की हैं, मगर जो कराची के दावेदार अपने आप को समझते हैं उनको ये बात शायद पसंद नहीं आई कि शहरियों को तकलीफ़ देना उनको ज़्यादा एहसास है। तो हमें इन चीज़ों का एहसास है और हम इस पर इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश कर रहे हैं। समाज से जाते जाते ये ऑन एयर एक अर्जी होगी हमारी एक दरख्वास्त है। अच्छा, वो दरख्वास्त ये है कि ये जो कोरंगी क्रॉसिंग है ना, यहाँ से 365 न्यूज़ तक की जो सड़क है, आप ज़ाहिर है आप सड़कें बना रहे हैं पूरे शहर में, तो ये सड़क भी बड़ी बदहाली का शिकार है, बड़ा मुश्किल होता है आना जाना। तो एक वादा करते जाइए, अगर आप कर सकते हैं, खुशखबरी दे दें हमें भी यहाँ के लोगों को कि बनने जा रही है सड़क। क्योंकि सर टाउन चेयरमैन भी पीपल्स पार्टी के ही हैं। जी, मैं चेक कराता हूँ कि ये आया हमारे KMC के डोमेन में है या टाउन के डोमेन में है। KMC के डोमेन में है तो इंशाल्लाह मैं वहाँ आपको ये रोड कारपेट करा के दे देंगे। अगर टाउन की है तो टाउन वालों से बात कर कर आपके ये रोड के इशू को हल करा देंगे। टाउन चेयरमैन भी पीपल्स पार्टी के हैं तो काम तो फिर बनता है। जी, मैं कह देता हूँ, नईम शेख साहब हैं वहाँ के टाउन चेयरमैन, तो मैं उनको कह के आपका ये रोड का मसला हल करवा देता हूँ। थैंक यू सर, बेहतरीन हो थैंक गया यू वेरी सर। मच। सलमान thank अब्दुल्ला you। मुराद साहब साथ हैं, हमने अपना वही अपना करवा भी लिया। काम करवा दिया जी। तो ज़बरदस्त। सही टाइम पे अर्जी रख दी हमने। वी रियली होप कि पाकिस्तान, स्पेशली कराची में जब हम देखते हैं, आप लाहौर जाते हैं तो आपको लगता है कि एक और वीज़ा की ज़रूरत होगी आपको लाहौर जाने के लिए। सड़कें अच्छी, ग्रीन बेल्ट्स भी हैं उनकी, तो क्यों नहीं कराची में जब ये काम हो तो। कराची में बिल्कुल काम होना चाहिए, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बहुत बड़े इसके मसाइल भी हैं, बहुत बड़ी बड़ी ज़ारे देखें ना, एरिया भी बहुत बड़ा है। तो अब ये सड़कों की मरम्मत हो रही है, फिर पानी के मसाइल हैं, सीवेज का मसला, आपने खुद भी सवालात किए, तो वो कह रहे हैं कि इस सब पे काम हो रहा है और बड़े मेगा प्रोजेक्ट भी KMC की तरफ से आ रहे हैं। तो उम्मीद यही करते हैं कि कराची के मसाइल हल हों, कराची के लोग जरा सुख का सांस। और अगर सड़कें बन रही हैं तो वो सस्टेन भी हो, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स वी सी कि सड़कें बनती हैं फिर वो 1-2 महीने में। अच्छा, आपने ट्रैफिक हादसात का भी सवाल किया था डिप्टी में कराची से, तो इसी पर हम मजीद बात करेंगे क्योंकि नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के हादसात हो रहे हैं, ट्रैफिक हादसात बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो एक